stated, rich countries are largely rich because of the skills of their population and the quality of institutions supporting economic activity. Yeah. Explain to me. See, there are two investments that every country has to make. एक तो skills of the people, whether it is driven by the government, whether it's driven by the culture, whether it's driven by a combination thereof. And two, institutions that are supporting economic activity. हमारे देश में हमें लगता है कि स्किल पे हमेशा फोकस रहा है, काफ़ी हद तक रहा है, एजुकेशन पे तो कम से कम रहा है, चाहे वो रोड रनिंग भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम प्रोड्यूस कर पाए हैं ऑफ रियली एक्सेप्शनल माइंड्स दैट हैव गॉन ऑन टू डू वंडरफुल थिंग्स. बट आई पर्सनली फील कि हमारे देश में एक खामी हमेशा यही रही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमने फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम थोड़ा सा निग्लेक्ट भी नहीं बोलूँगा, डिसमिस किया है. लाइक देयर वाज दिस फीलिंग दैट पैसे बनाना गलत चीज़ है, पैसे के पीछे भागना गलत चीज़ है, एक कैपिटलिस्ट माइंड होना गलत है, बिकॉज कैपिटलिज्म विल ऑलवेज लुक्ड एट एज something which is against the working class, something that doesn't uplift everyone but exploits some people at the expense of someone else, which is not capitalism. If you read the history of it and if you read in depth of it, it's clearly the most successful model that the world has seen in comparison to other models. लेकिन हमारे देश में कहीं ना वो एक थोड़ा सा मिडिल ग्राउंड जहाँ नहीं हम कैपिटलिस्ट बनना भी चाहते हैं, वी वांट टू सपोर्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेकिन एंड दैट्स वेयर आई फील दैट वी हैव कंटिन्यू टू सफ़र, क्योंकि उसकी वजह से जनरेशन्स ऐसे बने हैं वेयर दे हैव ऑल्सो बिन रेज्ड विद दैट बिलीफ कि पैसे बनाना, पैसे के पीछे भागना, बिजनेस करना गलत है. नौकरी करना एक ज़्यादा इज़्ज़तदार है, सरकारी नौकरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि वो स्टेबल है, सिक्योर है. बट इट्स क्रेजी हाउ द डिमांड एंड द desire for government jobs is so high in our country, while in most other countries it may not be to that level. And at least the few countries that I have read about and met people from, इतना क्रेज नहीं है कि मुझे सरकार के लिए नौकरी करनी है. यहाँ भी किसी को सरकार के लिए नौकरी नहीं करनी है, खुद के लिए करनी है, because they know it is the pathway to so many other things that happen in life. Whether it's respect, whether it's stability, whether it's just security of having it done. औधा जो होता है समाज, टोरा, बिल्कुल. तो फिर that is the reality. So whenever you look at developed countries, it's just very very clear skill development and economic activity and institutions supporting that. And I feel that we have done one part right and one part not so much. How can we make the second part right? Institution की बात करें अगर, because मैं नॉर्वे वर्सेस नाइजीरिया का केस देख रहा था. बोथ आर ऑयल रिच, राइट. नॉर्वे इज, आप देख लो कितना प्रोग्रेसिव, कितना डेवलप्ड है, वर्सेस नाइजीरिया सेम रिसोर्सेज, बट द ओनली डिफरेंस वाज द इंस्टीट्यूशन, द लैक ऑफ फोकस ऑन ensuring the institutions are corruption free, they run smoothly, they are efficient to a power that supports the growth and progressiveness of the population rather than निकालना उनसे कुछ. So how can we make India's institution the same way to what Norway has done? I'm not an expert, but if you ask me my view, putting a gun to my head, I would say कि the government will have to realize कि उसकी need कुछ जगहों पे है लेकिन बहुत जगहों पे नहीं है. And it should not be in the business of getting into those businesses. It should not be running things that it is not the forte of the government to, but either let private partnerships do it or have public-private partnerships to make that happen. क्योंकि at the end of it, for all right or wrong reasons, गवर्नमेंट का जॉब एंड दस उसकी फितरत, उसकी मेंटालिटी बहुत अलग होगी from somebody who is running a business with the sole social responsibility of making a profit from it. I do fundamentally believe that every business's social responsibility is to make profit. I, for the longest time, was not doing that when I was running a venture-funded business. And we'll talk about that. Like today, I'm proud that I'm doing that. It's crazy that for the first time in 16 years, I filed corporate tax 4 years back, because that was the first ever time in 16 years that I ever made a profit.
But today I realize how important that is. Or government will have to always have a very different approach, right? So primary education, absolutely government. क्योंकि primary education ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो एक right होना चाहिए हर एक बच्चे का, and बहुत सारे लोग उसको afford नहीं कर सकते, और बहुत सारे लोग अगर उसको एक profit making से approach करेंगे तो it will become out of reach for the masses. लेकिन the minute it gets into say secondary education or higher education or even tertiary education, I personally believe government की involvement बहुत कम होनी चाहिए, and private partnership बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. तभी वो curriculum बहुत up to date रहेगा, तभी job opportunities आपको अच्छे से मिलेंगी as soon as you graduate. Skill building बहुत अच्छे से होगी, क्योंकि skill building and economic activity will be interlinked. It will not be disconnected. ऐसा नहीं है कि curriculum कोई और बना रहा है जो कि से सरकार में बैठा हुआ है, लेकिन job कोई और दे रहा है जिसका कुछ इन्फ्लुएंस ही नहीं है उस पर, तो दे बी लाइक यार ये एम्प्लॉयबल भी नहीं है. एंड दैट इज वाई 43% ऑफ इंडियन ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल. अनएम्प्लॉयबल ये नहीं है कि उनको ट्रेनिंग करके मिल सकते हो, मतलब हम शुरू भी कहाँ से करें. दैट नंबर शुड नॉट बी 43%, इट शुड बी एट बेस्ट आई डोंट नो 3%, बट इट इज़ 43, एंड दैट सिंपली बिकॉज जो वो पढ़ रहे हैं कंपनीज उसको यूज़ नहीं कर सकती हैं. तो lots of other such things. बट मुझे बताओ कि आपने बोला कि सेकेंडरी एजुकेशन, ऑल ऑफ दिस एजुकेशन कैन बी आउटसोर्स टू प्राइवेट, राइट? प्राइमरी ऑफ कोर्स कैन बी अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. सेकेंडरी की अगर हम बात करें तो IITs and IIMs आर देयर, राइट? दे आर गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. व्हाई आर दे देन मोस्ट sought after? Because they just recruit the best students. Like, you didn't become smart because you went into IIT. You were smart and that's why you got into IIT. It's a huge difference. तो अगर आप एक ऐसा फनल बनाएंगे जहां आप इस देश के सबसे स्मार्ट लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट अच्छा निकलेगा ना भाई. मतलब कॉज एंड इफेक्ट अगर आपने समझा होगा तो कॉजेशन स्टोरी तो इसको आराम से प्रूव कर ही देगी. करेक्ट. तो तुम हाईएस्ट IQ वाले लोगों को ले रहे हो और तुम उनको 4 साल कुछ भी नहीं पढ़ाओगे, वो तब भी हाईएस्ट IQ रहेंगे. जंग नहीं खाएंगे वो, क्योंकि आपस में ही जब वो शाम को अपने हॉस्टल में बैठेंगे ना, जैसे आपने भी किया ही होगा, उसी से स्पार्क्स निकलेंगे, उसी से दिमाग खुल जाएगा. क्लास में तो इनफैक्ट बैठ के शायद दिमाग थोड़ा सा जंग ही खाने लगेगा, जो कि हो सकता है. मैं कभी IIT गया नहीं क्योंकि इतना समझदार कभी था ही नहीं, लेकिन आपको पता होगा कि क्या होता है वहाँ. ऐसा हो सकता है कि यार क्लास में बैठ के तो थोड़ा सा हम कम ही हो रहे हैं, लेकिन जैसे क्लास से बाहर निकलते हैं ना, तो वो JEE 10 नंबर के साथ बैठे हुए हैं, JEE 100 नंबर के साथ बैठे हुए हैं, दिमाग ही खुल जाता है. लाइक आइडियाज़ अलग लेवल के बनने शुरू हो जाते हैं, उससे स्टार्टअप आइडियाज़ आते हैं, उससे ये होता है, उससे वो होता है, बिकॉज दे आर फंडामेंटली ब्राइट. दैट्स द सेम थिंग विद NEET or AIMS. That's the same thing with NLS or law. That's the same thing with anything, even NIFT and fashion design. The point is, if you select the brightest students through a funnel, which is what, say, UPSC does, you will, of course, get the best outcomes. That's not the thing. The thing is, क्या IIT, and this is where I would have loved, right, कि IIT बोलता है यार मैं ना किसी को भी ले सकता हूँ, किसी को भी, और 4 साल बाद वो इंसान इस दुनिया का सबसे टॉप इंजीनियर में से एक होगा. Then I'll be like, you know what, IIT is the shit. But they're like, नहीं, हम छांट के एक ऐसा एग्जाम बनाएंगे जो इतना मुश्किल होगा कि 99% लोगों को तो पता भी नहीं होगा शुरू कैसे करना है. I remember my MS IIT Kanpur interview, which was the closest I got to getting into an IIT. तो 2 साल JEE दिया, नहीं आया, दूर तक नहीं आया, क्योंकि था ही नहीं इतना औकात. फिर बोला चलो छोड़ो, BSc किया, और फिर बोला चलो MSc के लिए जाएंगे. MSc फिजिक्स होता है, गेट दिया, गेट में थोड़े बहुत नंबर आ गए, और फिर मैं IIT कानपुर इंटरव्यू के लिए गया, और मैं इंटरव्यू में घुसता हूँ, मेरे सामने बैठे हुए हैं HC वर्मा. वाओ, क्रेजी. तो मेरा दिमाग ही एकदम फट गया. लाइक ये तो अब कुछ पूछेंगे, मुझे पता ही नहीं होगा. उन्होंने वही किया, वो गए बोर्ड पे, उन्होंने कुछ साइन कर्व बनाया, उन्होंने बोला इसको सॉल्व करिए. मुझे पता भी नहीं मैं शुरू कहाँ से कर रहा हूँ. मैंने 2 घंटा उसको स्टेयर किया होगा, या 2 मिनट उसको देखा होगा, चौक अपने हाथ में रखा, मैंने चौक वापस रखा, मैं बोला सॉरी सर, आई डोंट नो, एंड आई वॉकड आउट. बिकॉज आई न्यू आई जस्ट वॉजंट स्मार्ट इनफ एवर टू मेक दैट हैपन, और वट एवर यू मे कॉल दैट, लेकिन था ही नहीं. अब दैट्स द रियलिटी. अब अगर मैं होता नितिन बजाज तो मैं कर लेता वो, एंड वो सॉल्व हो जाता, एंड दैट्स व्हाई आई वुड मेक इट. तो कोई भी नहीं कर पाता है ना, तो उनको दिख ही गया होगा, जैसे मैं अंदर घुसा होगा कि इससे तो हो ना पाएगा, तो उसको 2 मिनट में निकाल दो. बट मुझे ये बताओ कि व्हाट इफ IIT, जैसे आप बोल रहे थे कि लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी प्राइवेटाइज्ड एंड कुड बी बेटर.
Do you think IITs will become better if you privatize them? Yeah, I don't know, but I like to believe yes. And here's the reason why. The biggest difference will be that it will make a infrastructure and an environment that will support the industry. Ultimately वही है. क्योंकि जैसे I am a outcome of ISB, which is an out and out private institution. ये जब आप IIT की बात बोल रहे थे ना, आपने किसी को ये नहीं बोला आप ISB भी गए हो? हाँ, नहीं वो तो हल्के में आपने बताया. नहीं वो ऐसा वो यार 5 साल पुराना स्कूल था उस समय पे, तो मैं क्योंकि US से आया था तो मैं आराम से घुस सकता था. बट एनीवे द पॉइंट वाज कि वो कंसेप्शलाइज ही ऐसे किया गया कि यार इस देश के दिग्गज इंडस्ट्रियलिस्ट आए, उन्होंने बोला यार एक ऐसा बिजनेस स्कूल होना चाहिए जो वाकई में वो सिखाए जो हमें ज़रूरत होती है, डे 1 से इम्प्लीमेंट हो सकता है. तो उन्होंने वो बनाने की कोशिश करी. अब वो चाहते तो वो भी फिर गवर्नमेंट एक्रेडिटेड हो सकते थे, ये सारा अपना UGC से अपना रिकग्नाइज करवाओ डिग्री ये सब वगैरह. उन्होंने बोला नहीं करना है वो सब, फॉर ऑल द राइट रीजंस, एटलीस्ट आई बिलीव सो. And it's turned out to be a good thing. Yeah. The same thing with, say, an Ashoka University. The same thing with, say, a Plaksha. Correct. Because they're all going to develop something which will be progressive. And मुझे personally ऐसा लगता है that the only reason, not the only reason, the only advantage that the IITs or the IIMs for the longest time served was to ensure that there was no economic disparity. कि कोई इंसान एक बहुत छोटे से गांव से बहुत incredible intelligence के साथ अगर आ रहा है तो उसको ऐसा नहीं होना चाहिए यार कि 25 लाख रुपए की डिग्री वो कैसे करेगा. बट उसके लिए भी मैं जैसे जब ISB गया 15 लाख रुपए की डिग्री थी, ये 20 साल पुरानी बात है, तो बेइंतहा महंगा था. लेकिन मुझे लोन मिला और 99% बच्चे आज भी ISB लोन लेके ही जाते हैं क्योंकि कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता. लेकिन वो इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो लोन चुकाने की क्षमता इस कोर्स को करने के बाद मुमकिन होगी. करेक्ट. That is the same way it should be done. That is what I mean by economic activity. Like कि आप एक पैसे के संतुलन को समझते हैं, उसके जज्बे को समझते हैं, उसके इनफ्लो एंड आउटफ्लो को समझते हैं, तो आप एक कर्ज लेने के लिए तैयार हैं क्योंकि आपको पता है कि ये इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आप एक धंधे के लिए भी बिजनेस लोन लेंगे, उसका एक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आएगा. That's the same thing you should think about education as well. Education for me is a return on investment. And मैं अक्सर बोलता हूँ कि ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही लोन लेने चाहिए अगर आप ले सकते हैं, कि एजुकेशन लोन और एक घर का लोन. क्योंकि ये दोनों हमारे हैसियत के बियॉन्ड होते हैं जब हम वो लेते हैं, लेकिन उसको एक रिटर्न मिलता है, चाहे वो एक इमोशनल रिटर्न हो इन द फॉर्म ऑफ अ हाउस,